Everyone, ladies and gentlemen, students, boys and girls, and the other genders present here. अभी तक लीगल नहीं है, थोड़े टाइम पे हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. Right. So, lend me yours for 5 minutes. This will be a monologue from my side for only 3 to 4 minutes, and I'll be taking questions from you people. At first, let me thank the faculty members, teaching staff here. Because of them, I've been able to reach here. Every word I speak, everything I do today, the foundations were led by these people right here in this school. So let me assure you, you are at the right place present currently to do anything you wish to do. Second thing is very personal to me. I've been hearing stories that teachers, senior teachers, have been retiring year on year. Again, it's very disheartening for me to see the known faces. I'm very fortunate to still catch some of you here. I don't know what will happen maybe perhaps in your future in 5-10 years when I come back here again, I will be able to see you or not. We'll be moving to your respective towns. But again, change is the only constant. So I cherish this moment till the time I am here. I am able to meet you people time and again. Whenever I am ready, I come to meet you people, and then I am very fortunate for that. I am very thankful for that to God. So now coming to the topic, I have been told that this is a mixed crowd from science background, medical, engineering, commerce as well. Some students from commerce as well. Head start we have already got. Class 12. Are there any students of class 11 as well? No, only 12. So you, सारी 11th की हो, just pass out your 11th class, 12th में गए हो. This is your summer vacation. To be honest, thank you for attending these classes. Principal sir told me these were the voluntary classes. You are not being compelled to attend these classes. Still you are here wasting your good summer time, not eating mangoes and coming to school. So good for you people, good for you people. Now coming to the crux, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए समर वेकेशन. आई पर्सनली बिलीव स्कूल के टाइम पे समर वेकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता था आपको हेड स्टार्ट देने के लिए बाकी स्टूडेंट्स बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने. अब जस्ट क्लास आपका चेंज होता है, 10th पास करते हो 11th जाते हो, 11th से पास करते हो 12th जाते हो. एक महीने की पढ़ाई होती है, आपको सिलेबस सबका पता होता है, आपको अपने टारगेट्स पता होते हैं, बट देन आपका समर वेकेशन आ रहा है. तो इसमें होता यह है कि आपके पास स्टार्टिंग नॉलेज सब में होता है, बाकी बच्चे छुट्टी मनाते हैं. यूज दिस टाइम टू टेक द लीड. आपको जिन चीज़ों में अच्छा करना है, जो चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, आपके पास 30 डेज एक्स्ट्रा समय है. बहुत लोग शादी में गए होंगे, बहुत लोग घूमने गए होंगे, बहुत लोग नानी के घर गए होंगे. इट्स गुड, गो विजिट योर beloved ones, acquaintances in the far-fetched areas. जहाँ जाना है जाइए. Wrap it up in 1 or 2 weeks. Save at least 2 weeks for yourself, जहाँ आप पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना. एक बहुत बड़ी क्राउड है जो अपना पूरा साल स्कूलिंग छोड़ के कोटा में बैठ रही होती है, दिल्ली में बैठ रही होती है, कोचिंग कर रही होती है, या फिर दिल्ली में लक्ष्मी नगर में बैठे होते हैं, कॉमर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, सीए निकालना है या 12th का एग्जाम निकालना है, हाईएस्ट परसेंटेज. बहुत बार मेजॉरिटी रिजल्ट में आपको पता होता है कि वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया यूपी वगैरह के स्कूल से टॉपर और इंडिया टॉपर्स निकल रहे होते हैं. ये पासिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा वेस्ट डीएवीज या ओवरऑल सीबीएसई बोर्ड्स का होता है. ईस्टर्न में थोड़ा कम होता है, राइट. थोड़ा वेदर एफिशिएंसी की भी बात है कि ठीक है, ठंडी जगहों में थोड़ी पढ़ाई बढ़िया होती है, गर्मी में थोड़ा दिक्कत होता है, बट ट्रस्ट मी, यू हैव गॉट डिसेंट इनफ फैसिलिटीज हियर जिसमें आप पढ़ाई कर सकते. तो समर वेकेशन में लीड लीजिए, अपने मैथमेटिक्स को आगे ले जाइए. हो सके तो 5-6 चैप्टर एक्स्ट्रा कंप्लीट कर लीजिए. अगर आपका मैथ्स है तो आपका अकाउंट्स है तो आप अकाउंट्स का करिए, बायो है तो बायो करिए. जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आप वीक थे, 11th में छूट गया था, एडमिशन आपका लेट से हुआ था, या बीच में इमरजेंसी घरों में आ गई थी, आपको 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कुछ भी देंगे, कॉमर्स देंगे, मेडिकल का देंगे, नीट देंगे या फिर आईटी का एग्जाम देंगे, सब में 11th 12th दोनों पूछा जाता है. दिस इज द राइट टाइम टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स जो कि छूट गए थे. आपके स्कूल में अच्छे परसेंटेज नहीं आ सकते, हो सकता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, राइट. तो आपके अच्छे परसेंटेज ना हो स्कूल में, फिर भी नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता जो आईटी जेई के टॉपर होते हैं या नीट के टॉपर होते हैं या फिर कॉमर्स के जो सीए वगैरह में हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं वो अपने स्कूल के टॉपर होते हैं. दिस इज हाईली रेयर.
वो डिसेंट परफॉर्म करते हैं स्कूल में, बट एवरेज एवरेज परफॉर्म करते हैं स्कूल में और टॉप कर जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि आप एवरेज हो तो आप वहीं पे प्लेस हो। तो अगर आप स्कूल में कम ध्यान दे रहे हो तो कहीं तो ज़्यादा ध्यान देना है, और वो ज़्यादा ध्यान देना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, ताकि आप यहाँ से किसी अच्छे कॉलेज में जा पाएँ। अच्छे कॉलेज में मेरा मतलब है कि गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह इज गुड, यहाँ पे आपको डिसेंट डिग्री मिल जाएगी, राइट, लेकिन करियर प्रॉस्पेक्ट्स आपको कम मिलेंगे। तो आपको डिग्री ब्रांडिश तो नहीं करना अपनी दीवार पे कि मैंने यहाँ से किया है, बीएससी कर लिया है, बीकॉम कर लिया, उसके बाद एमएससी कर लिया, एमकॉम कर लिया, राइट। आपको एक फंक्शनल लाइफस्टाइल चाहिए अपने लिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट रहें। अभी राइट टाइम लोग, हमारे साइड में लोग कंसिडर करते हैं कि 10th 11th के बच्चे होते हैं। 10th 11th के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, 16-17 साल के हैं। एक साल में आप लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, भारत को प्रधानमंत्री चुन सकेंगे एक साल के बाद। इतने बच्चे तो नहीं हैं आप लोग। टीचर्स ट्रीट करते हैं, पेरेंट्स ट्रीट करते हैं, आप अपने आप को बच्चों की तरह मत ट्रीट करो। दिस इज टाइम टू ग्रो अप, ओन अप योर थिंग्स। जो आपका एग्जाम है, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है, जो आपका ड्रीम है, जो अचीव करना है, उसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना है कि आगे जाके हो जाएगा। उसे अभी करना है, अभी। अगर अभी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बाद में जाके तो बहुत दिक्कत होगी। आई नो दीज आर हार्ड, वेरी हार्श वर्ड्स फॉर यू। आपको बहुत अच्छे से रखा जाता है, कभी डांट सुनते हैं, पर बदमाशी आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, मुझे पता है ना। तब वहाँ पे आप लोग बच्चे नहीं रहते। Tell me, how many of you have Instagram or Facebook accounts here? Right. Be honest, be honest. कोई एक्शन नहीं ले रहा मैं, मेरा भी है। राइट, धीरे धीरे राइट। किसी ने चलाना तो नहीं सिखाया होगा, आपके पेरेंट्स ने तो कभी नहीं बोला था कि फेसबुक चला लो, इंस्टाग्राम चला लो। एक प्रोफाइल बना लो, अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी मेंटेन करो जिसमें 1500 फ्रेंड्स हैं, जिसमें यहाँ पे आपको 5 लोग जान रहे हैं, वहाँ पे आपको 1000 लोग जान रहे हैं। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टाइम टू टाइम फोटो अपलोड करते हो, उसमें कहीं घूमने जाते हो, शेड्स लगा के तो वहाँ पे फोटो आता है, लोगों से मैसेज करते हो, शाम में जाके घर पे बात करते हो, है ना। वर्चुअल आइडेंटिटी मेंटेन की हो। यहाँ पे हो सकता है कोई यूजर है, वहाँ पे जाके सुपरस्टार है इंस्टाग्राम, राइट। मेंटेन कर रहे हो ना, तो ये मैच्योरिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आप बच्चे नहीं, है ना। बच्चों का प्रोफाइल अलग होता है। आप लोग नेटफ्लिक्स देखने से पहले या अमेज़न प्राइम में फिल्म देखने से पहले ये तो नहीं सब्सक्राइब करते कि एम18 प्लस और ऑर्डर या चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ तो नहीं देखते, राइट। तो बच्चे तो नहीं है ना, ये खत्म हो गया। ओन अप योर थिंग्स, हाँ, ओन अप योर थिंग्स। अब समय आ गया है 11th-12th में कस के पढ़ाई करना है, एक बहुत अच्छा सा डिसेंट कॉलेज में जाना है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, एक फंक्शनल लाइफस्टाइल चूज करना है, करियर चूज करना है, कहीं भी हो सकता है, बीकॉम में हो सकता है। सारे टॉपर्स के नाम आते हैं, आपको बताएं। टॉप नहीं करना है, एकदम डिसेंट करना है परफॉर्म के, जिससे आपसे बहुत अच्छा फंक्शनल जॉब मिले या बहुत अच्छा आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए कि आप आगे जाके बिजनेस कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। पीछे मीना है, हाँ ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स भी पीछे बैठते हैं। तो started this trend, पहले भी स्कूल में हुआ करता था, पीछे बैठते थे, सरस्वती मैम काफी हम लोग रहती थी उस टाइम। एनीवे, आई होप कि 11th खत्म हो गया है, तो आपका स्टॉक लेते हैं, क्विक टेक्निकल स्टॉक लेते हैं। साइंस वाले, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाले, 11th आपका खत्म हो गया है, तो आई होप कि आपने कम से कम 1000 एमसीक्यू लगा लिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, या फिर मैथ्स छोड़ के बायोलॉजी में, जो नीट की तैयारी करते हैं। 1000 से मेरा एमसीक्यू का मतलब है कि हर चैप्टर में एवरेज आपका 12 से 13 चैप्टर है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। सब में अगर 100-200 क्वेश्चन भी लगाए होंगे आप एक चैप्टर में, और मैथ्स का लेके और फिजिक्स का लेके, केमिस्ट्री का लेके, तो वो 1000 हो जाएगा। 1000 नहीं तो कम से कम 5। मुझे पता है किसी ने नहीं किया अभी तक 1000 एमसीक्यू, सोच रहे हैं कि 12 पास करेंगे तो फिर अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन और एग्जाम जाके दे देंगे, मौका हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। 2-3 होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे। टाइम का स्टॉक नहीं ले रहे आप लोग, करेक्टली प्लेस्ड हैं, बट इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है ना। ये समर वेकेशन में करना है, खोलो, डरना नहीं, रुक जाओ, डीसी पांडे की बुक लेके आ जाओ, 11th का बुक आता है, ट्रिपल वगैरह के लिए, जेई मेन हो गया है, जेई एडवांस हो गया है, बुक खरीद के आइए। आरती मुखर्जी हो गया, केमिस्ट्री में जो भी आपका चल रहा हो, दिनेश चल रहा हो, मे बी एबीसी का चलता था पहले, उसके लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट वो सब लगाइए, इंटरेस्ट लीजिए, एटलीस्ट देखिए कि होता कैसा है। ऐसा नहीं है ना कि एग्जाम में अचानक से जाके बैठे और फिर आपका क्वेश्चन बनने लग जाएगा। आज तक हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, एग्जाम में जाके सब्जेक्टिव आंसर्स लिख के आए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, अचानक से जाके 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन मारना पड़ेगा और सब एक जैसे दिखते हैं, है ना। तो नहीं बनता, ट्रस्ट में नहीं बनता, मुझे एक्सपीरियंस है, नहीं बनता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर शुरू के 10 मिनट में सारे एग्जाम में डिसहार्टन हो जाएंगे, एंड यू फेल देयर।
तो ये नहीं करना है ना, अभी से प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स केमिस्ट्री जो आपका वीक सब्जेक्ट है या जिसमें आपको लीड लेना है, समर वेकेशन इज द राइट टाइम। आप लीजिए ब्रेक, 2 वीक का ब्रेक लीजिए। आई गेस 1 महीने की छुट्टी होती है, 1 महीने की होती है राइट, 1 महीने की छुट्टी होती है। 1 वीक आपका निकल गया यहाँ पे, गुड, पढ़ाई चल रही थी, अच्छा है, समर कैंप अटेंड किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड की, ये आपका बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। टेक 1 वीक ब्रेक, घूम के आइए नानी के घर या जहाँ जाना है, शादियों में जाना है, उसके बाद घर पे बैठे 6 घंटे पढ़ाई करिए, बाकी के 18 घंटे दिन में खेलिए, दौड़िए, जो करना है। उन 6 घंटों में आपको जिसमें लीड चाहिए उसकी पढ़ाई कर लीजिए। 6 घंटे बहुत नहीं है राइट, आप 7-8 घंटे सोते होंगे, 6 घंटे पढ़ाई करिए, उसके बाद भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए। समय कर दीजिए, टाइम को रैशनलाइज करिए। अगेन ये सब करने के लिए आपको ओन करना पड़ेगा, आपको अपना फंक्शनल प्लान बनाना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे मैं काम करूंगा। अगर आप सोचोगे कि पढ़ाई करेंगे तो कल करेंगे, परसों करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, ऐसे टाइम निकलता जाएगा। एक फंक्शनल प्लान बनाएंगे कि आपका गोल क्या है, कि समर वेकेशन के बाद आप किस स्टेज में होना चाहते हैं, है ना। केमिस्ट्री में है तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो ऑर्गेनिक तक आप पहुंचना चाहते हो। हमें भी बताया क्या बात कर, जरूरी राइट। तो थोड़ा डर का माहौल है, लड़कियां सीरियस लग रही है, लड़के भी सीरियस लग रहे हैं थोड़े से, खाली उस पूरा ग्रुप पे कुछ बात चल रही है। हाँ राइट, तो आपको स्टॉक मिल गया कि आप अपनी प्रिपरेशन के स्टॉक लीजिए जाके कि कहाँ तक आपकी तैयारी हुई, आपको क्या हासिल करना है, एक फंक्शनल प्लान बनाइए, उसे इंप्लीमेंट करिए। तो कंसल्ट वन ऑफ योर टीचर्स, चूज टीचर ऑफ योर चॉइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्कूल में जो भी टीचर है, एक ड्राफ्ट प्लान बना के कि मैम छुट्टी के बाद आई बिलीव कि मैं ये गोल अचीव करूंगा, करूंगी, है ना। और मैम को व्हाट्सएप कर दीजिए, सर को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, सर देख लेंगे, कोई इनपुट नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मांग लीजिए, राइट। इससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, खुद को धोखा देना स्टार्ट कर देते हैं 5 मिनट। किसी को भेज दीजिए, अपने पेरेंट्स को भी भेज दीजिए, ये अचीव करना है, और छुट्टी 1 महीने के बाद बात करेंगे कि कितना अचीव हो गया। अगर 70% भी हो गया तो यह गुड टू गो है, आगे फिर बढ़ जाओ। तो 12th वाले बच्चे 11th वाला सारा रिवाइज कर लो अपना, एटलीस्ट 12th का मैथ्स काफी आगे तक बढ़ा दो। केमिस्ट्री के बेसिक्स फाउंडेशन जितने हो गए आपके, चैप्टर 1-2 चैप्टर ज्यादा लेके रिवाइज करो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4-5 इनऑर्गेनिक तक। फिजिक्स के लिए भी 11 के कंसेप्ट रिवाइज कर लो, कुछ एमसीक्यू लगा, यहाँ तक है। कॉमर्स वाले लोग अकाउंट्स वगैरह प्रैक्टिस कर लो, जिनका स्लिप होता है, प्लस माइनस का मिस्टेक होता है, डिस्काउंटिंग परसेंटेज में अभी तक दिक्कतें आती हैं उन लोगों को भी, सारे अपने बेसिक्स रिवाइज कर लो, बाद में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, है ना। उसके बाद 12th खत्म होगा आपका, 1 मंथ का टाइम होगा। बोर्ड्स ठीक है, अच्छा लगता है, प्राइज मिलता है, आप टॉप करते हो, बहुत अच्छा परसेंटेज ला रहे हो, 90, 95, 96% लाना आपको एक बहुत मुश्किल बात नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, टू बी ऑनेस्ट। राइट, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ अभी अपने सेम माइंड में, आई एम क्लेमिंग दैट गेटिंग 95%, 96% मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड्स आर नॉट टफ, दे आर नॉट टफ। आता है लोगों का, आई हैव सीन पीपल, not seen exceptional people, I have seen average people going to quota, studying for JEE, getting 2-digit rank in IIT, JEE mains, JEE advanced, and also scoring 93, 94 plus marks in CBSE boards, right? But we are doing a unitary thing, just preparing for CBSE based examinations. You have to take the other side as well, right? तो other side को strong करना है यहाँ पे, आपके marks आ जाएंगे, go for it। अगर आपको लगता है कि आप CBSE का इतना comprehensive study कर रहे हैं कि आपका JEE भी क्रैक हो जाए, तो करिए उतना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। दिस वाज द स्ट्रेटजी आई फॉलो। मुझे लगा था कि जेई का क्योंकि कोचिंग यहाँ पे है नहीं, राइट, दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग है नहीं मॉडर्न जो जेई का अच्छे से कोचिंग कराते हैं, कोटा लेवल पटना लेवल कोचिंग कराती है। तो आई डिसाइडेड कि हम सीबीएसई बोर्ड का इतना पर अच्छे से तैयारी करेंगे और उससे थोड़ा 1-2 स्टेप आगे तक तैयारी करेंगे कि मेरा जेई भी क्रैक हो जाए, राइट। खास तो सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज आए, लेकिन जेई लेवल पे क्वालिफाई करने टाइप के मार्क्स होने लगे मेरे। जेई मेंस में 360 मार्क्स का एग्जाम है तो 150-170 नंबर आ रहे हैं, राइट, उतना ही लेवल पहुंच पाता है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर आई रियलाइज कि जेई एडवांस नहीं क्रैक होगा सीबीएसई लेवल से, तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ कि स्कूल लेवल पढ़ाई से जेई एडवांस क्रैक नहीं होगा, जेई मेंस क्रैक हो जाएगा। जेई एडवांस क्रैक करने के लिए अभी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, दिस इज द टाइम यू पुट योर एफर्ट्स। मेडिकल वाले भी नीट के एग्जाम में आपका बायो हो सकता है कि वीक हो, क्योंकि 10 तक 9-10 वाले में बायो होते हैं, वो लिए बहुत टाइम नहीं पढ़ रखा, याद नहीं होता, रिवाइज कर लिया अभी। नीट में आपका फिजिक्स थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आता है जेई मेंस से,
नीट के कितने स्टूडेंट्स हैं बायो वाले? दे आर तो आपका फिजिक्स थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आता है जेई के लेवल से, जेई मेंस और एडवांस के लेवल से, राइट? केमिस्ट्री डिसेंट आता है सेम लेवल पे और बायो आपका एक्स्ट्रा होता है। क्यों फिजिक्स थोड़ा सा इजी करना पड़ता है? क्योंकि आपका मैथ्स स्ट्रीम नहीं है बहुत लोगों का, तो बहुत सारा फिजिक्स में मैथ्स का पार्ट आता है, डेरिवेटिव्स, कैलकुलस, उस पर थोड़ा सा बेसिक्स मैथ्स पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं, आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? कैलकुलस के 2-3 चैप्टर आप जिनसे भी पढ़ाई करते हैं, एमपीसी से यहाँ भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कैलकुलस वाला पार्ट पे स्पेशल फोकस करिए। अगर डाउट लग रहा है आपको तो पूछ लिया करिए। अगर आपका कैलकुलस का 2-3 चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा ना, डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम बेसिक कांसेप्ट, तो आपको वो स्ट्रांग हो जाएगा। नीट एग्जाम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होके आते हैं, बट सीट्स की बहुत मारामारी है, कैंडिडेट्स बहुत हैं, तो फिर रैंक बहुत अच्छी आने पे भी कॉलेज नहीं मिलती, इसीलिए एक्सेप्शनल मार्क्स आना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू, तो सीनियर्स हैव बीन अचीविंग दैट। रिम्स में एडमिशन हो रहा है, एम्स में एडमिशन हो रहा है ना, जितमर में एडमिशन हो रहा है आपके सीनियर्स का, धनबाद में पीएमसीएच पे एडमिशन हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये करने वाले हैं। होलिस्टिकली यही कवर करना है, समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करिए, सिंस आई एम हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं ये बोलूँगा। और आने वाला 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पे फोकस करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया से भी थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। थोड़ा सा प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है बच्चों में, विच इज़ ट्रू। डिस्ट्रैक्शन इसी उम्र में होता है, इसी उम्र में सब कुछ होता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है, पढ़ाई भी होता है। इट इज़ व्हाट यू चूज, करना क्या है, राइट? तो मेरे साइड से इतना ही, मेरा मोनोलॉग समाप्त होता है। आई एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यू, पीपल अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं। और इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने का क्या? मैं बताऊँ और फिर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि तुम लोग हर को कोई मतलब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। ये आपका जो है बास्केटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की। कोई भी असाइनमेंट दिया जाता था अदर एक्टिविटीज़ में एक्टिवली रोल प्ले करता था, और यही कारण है कि इसके इंटरव्यू है, इसके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप किया। हर चीज़ में हम लोगों ने देखा, बल्कि कहीं कहीं अगर किसी काम में नहीं इन्वॉल्व किए थे तो नाराज़गी भी होती थी कि हमें काम क्यों नहीं दिया गया। तो रवि ने दूसरे कामों में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ध्यान किस हाउस में थे? लेकिन ये आपके हाउस एक्टिविटीज में भी आगे रखता था। इसके विषय में तो बता रहा है इसलिए बच्चे सीरियस है, लेकिन अदर एक्टिविटीज के विषय में बताओगे तो जो इसके इंटरव्यू इसको आगे बढ़ने में इतना कॉन्फिडेंस जुनून जो पैदा हुआ वो सारी अदर एक्टिविटीज से आया। और एक बात जो है सर, हाँ। और सुन लो, whenever he is in town, okay, he is freely accessible to each and every one of you. एक सेकेंड ये फ्री नहीं बैठता है, कोई भी इससे तुम लोग को किसी तरह का स्टडीज रिलेटेड हेल्प चाहिए तो यू कैन गो एंड मीट मी, देयर इज नो बार। वी हैव सीन इट, मीन्स our children have taken the advantage। 1 मिनट भी वो रात छोड़कर सिर्फ रेस्ट नहीं लेता, हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है, बल्कि वो फ़ोन करके बुलाता भी है। यदि तुम लोग को नीड है वो फ़ोन करके बुलाएगा, जो फ्री, आई एम फ्री, इफ़ यू ऑल आर फ्री कम एंड टेक दैट थिंग फ्रॉम मी। सो आप टेक दैट एडवांटेज। फ्री हो क्योंकि आप ये कर सकते हैं। चीज़ों का सबसे प्रिय रहा, हमेशा बातों को मानने वाला, और यही कारण है कि इतना वो सब किसी से नहीं बना हुआ है अभी। और घर पर भी बुलाकर बच्चों को मतलब हमेशा टाइम देता, अपने घर पर टाइम देता है। एक्टिविटीज के विषय में भी लेट मी अटेस्ट दैट ये ट्रू है। आप लोगों को लगे कि कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, माय होम इज ऑलवेज ओपन, यू आर वेरी वेलकम इन माय होम। कभी भी आपको लगे कि ऐसा लग रहा है, कॉल मी फर्स्ट, यू कैन कम टू माय होम, आई विल अटेंड। अगर कुछ भी लग रहा है आपको, बात भी करनी है, कुछ शेयर करना है या कुछ बुरा लग रहा है, आई विल बी देयर। इसके लिए ओपन है, कभी भी जब भी मैं रेडी आता हूँ तो बोल सकता हूँ, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? तो एक चीज़ है। दूसरा स्पोर्ट्स वाला ट्रू है, बास्केटबॉल वगैरह ट्यूशन है यहाँ बास्केटबॉल, और काम होता है यार, आप एप्टीट्यूड हर फील्ड में डेवलप करो ना। स्पोर्ट्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दिन भर पढ़ाई करोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, एक टाइम के बाद पढ़ाई नहीं होता। 5 घंटे स्कूल से जाने के बाद मन नहीं करता ना, इधर उधर घूमने का मन करता है, दोस्तों के साथ सो जाने का मन करता है, चावल खाया सो गया, उसके बाद फिर ट्यूशन जाना है, कुछ भी नहीं कर रहे ना एक्स्ट्रा करिकुलर, करना है धीरे धीरे।
बास्केटबॉल स्कूल से खेलना सीखा, कॉलेज में जाके इंटर आईआईटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया। अभी लवासना गया था आईएएस की ट्रेनिंग में, वहां पे भी जाके इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ, फॉरेस्ट सर्विसेज वालों के साथ इंटर इंस्टीट्यूट मैच खेल के आया हूँ बास्केटबॉल में। फिर धीरे धीरे वंस यू डेवलप एप्टीट्यूड इन वन सब्जेक्ट, स्टडीज की तरह नहीं है। आप एक बार फिजिक्स में बहुत अच्छे हो जाते हो तो केमिस्ट्री में बहुत खराब नहीं होते, एवरेज होते, मैथ्स में बहुत खराब नहीं हो जाते, है ना। वंस यू नो हाउ टू डू इट, यू स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट इन अदर एरियाज एज वेल। उसी तरह बास्केटबॉल एक बार स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड पता चला, कितने हेल्दी एनवायरनमेंट है, कंपटीशन है लोगों के बीच में, लाइव कंपटीशन है। आप एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है 1 महीने बाद, वेट करके परेशान होते हैं। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में खेला और पता चल गया कौन बेटर है और कौन खराब है, क्या करने की जरूरत है, किस एरिया में वर्क करने की जरूरत है, ये तुरंत पता चलता है। ऐसे स्पोर्ट्स वैसा इंस्टेंट मोटिवेशन आपको देता है कि क्या काम करना है। सेम गोल, बास्केटबॉल सीख गया, फिर बैडमिंटन सीखने लगा। एक बार ओलंपिक चैंपियन आए हुए थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर है एनवाई सुहास करके, तो वो ओलंपिक चैंपियन है बैडमिंटन में, वो अकेडमी आए हुए थे, तो उनके साथ बैडमिंटन खेला। ऐसा मोटिवेशन मिला कि फिर उस दिन से बैडमिंटन ही खेल रहे, अभी तक खेल रहे, काफी अच्छा इंप्रूव हो गया है। सेम गोल टेबल टेनिस खेल रहे, स्विमिंग करना नहीं सीखा था, स्विमिंग करना भी सीख गया धीरे धीरे। एक स्पोर्ट्स में जाना होता है, उसके बाद में स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट। अब मेरे को लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, और फिट भी हो जाता है। तुम थोड़े से वेट लूज कर लेते हो, सब कुछ फिट हो जाता है, राइट। तो अभी लेकिन आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स करो थोड़ा मोड़ा, है ना। स्कूल में जितना चल रहा है या बाहर में स्पोर्ट्स, क्रिकेट में 4 घंटे फील्ड में खड़े रहने की जरूरत नहीं, अभी पढ़ाई कर लेना आप लोगों को, ये सारा चीज चलेगा। आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैंने जेई का बता दिया, मेडिकल का बता दिया, कॉमर्स का बता दिया, यूपीएससी का नहीं बताया कैसे करना है। यूपीएससी ग्रेजुएशन, यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली के बारे में बात कर रहा हूँ, आईएएस आईपीएस आईआरएस ये सारे सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन के बाद होना है। तो अभी आपके लिए थोड़ा दूर है। कॉलेज सेकंड ईयर में जाओगे तो फोकस करना स्टार्ट करना, अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो अभी से बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी से आपका साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्ट्स बैकग्राउंड है कि आप आर्ट्स पढ़ने वाले आगे तक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जितना पढ़ा है चीजों को अच्छे से पढ़ो, आगे जाके वो हेल्प करेगा आपके यूपीएससी के सिलेबस। यूपीएससी में मोस्टली आर्ट्स है, ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ के सारे आर्ट्स के चीजें होते हैं। सोशल साइंसेज, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके 4 तरह के हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाला सब चीज का कॉकटेल है, साइंस एंड टेक सब कुछ का कॉकटेल पूछा जाता है। दुनिया में जो कुछ भी है सब पूछ लेंगे वो किसी ना किसी तरीके से यूपीएससी। तो बी गुड एट योर ओन थिंग। अभी ग्रेजुएशन में जाकर वो हेल्प करेगा कि वो एक पार्ट फॉर्म करेगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, है ना। और अभी जो आप लाइफ स्किल्स यहाँ से गेन करोगे ना, डिलीजेंट होकर पढ़ाई करना, लॉन्ग स्टडी आवर्स होना, बैठना, चीजों को ग्रास्प करना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, ये सारे एबिलिटीज हैं जो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में आगे जाके हेल्प करेंगे। सब रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ भी है नहीं है जो यूपीएससी में रिक्वायर्ड नहीं होने वाला। सुनते होगे आपकी 6-7 साल लगते हैं तैयारी करने में, एंड दिस इज रियल। मैं भी डिस्पाइज करता था लोगों के कि they went to Delhi and took around 7-8 years, they are sitting there wasting their parents money, what are they doing, I felt so sorry for them, पहले ऐसा लगता था। When I delved into it, we delved down into it, into the examination, I got to know that examination was real tough, was a real nut to crack. This is life changing experience, वहाँ जाके आपको पता चलेगा। 13-13 घंटे लोग पढ़ते हैं बैठ के, 13 घंटे प्लस पढ़ते लोग, 15-15 घंटे पढ़ते हैं एग्जाम के पहले बैठ के, क्योंकि सब कुछ कवर करना है। कम से कम 50 बुक्स और नोट्स होते हैं एक टाइम पे कवर करने के लिए। एग्जाम से एक दिन पहले आपको 50 याद होने चाहिए, तो 15 घंटे भी आपको लगेंगे कम होंगे। आप प्रे करोगे कि दिन में 24 घंटे से ज्यादा क्यों नहीं होते, तो इस लेवल की तैयारी चाहिए। तो इसमें 6-7 साल लग रहा है, 2 नंबर से फिल कर जा रहे हैं, तो डिस्पाइज करने की बात नहीं है। इट टेक्स गट्स आउट ऑफ यू, इट टेक्स एनर्जी आउट ऑफ यू, एंड इट विल टेक योर एनर्जी एज वेल। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तैयारी करिए, बात करिए अपने दोस्तों से जो कोटा गए हैं, इधर उधर गए हैं, जो सीरियस है, दे टेल यू कि 2-10 घंटे ज्यादा हमेशा पढ़ते हैं। और फोकस स्टडी 10 hours is exhausting, completely exhausting, your mind will be blown। कि आप दिन में जाओगे बेड में सोचते क्या पढ़ा, आपको नींद आ जाए। नींद नहीं आने की परेशानी है तो आप काम इनफ नहीं कर रहे, अनलेस कोई मेडिकल कंडीशन है। नींद नहीं आ रही रात में तो आप इनफ काम नहीं कर रहे, आप दिन में थक नहीं रहे। आप अपने टीचर से पूछो, उनको ऐसा नहीं होता, उनको सोने का टाइम कम पड़ जाता है, दिन भर काम कर रहे होते हैं, आप पे ध्यान दे रहे हो, उनका दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है। आपको नींद नहीं आ रही मतलब आप काम कम कर रहे हैं, है ना, बेड में जाने का दिमाग खाली बच जा रहा है, या अगले दिन का गोल सेट नहीं है। तो ये सारी चीजें यूपीएससी के बारे में अभी इतना ही, स्टार्टर्स के लिए आपके लिए उससे ज्यादा काम की चीज नहीं। कभी लगे करना है सीरियसली कॉन्टैक्ट में आके ये मत पूछना कि भैया यूपीएससी कैसे करना है, वो आपको गूगल बता देगा। आप तैयारी चालू कर लोगे, आपको कहीं परेशानी आएगी बीच में रास्ते में, फोकस परेशानी आएगी, हिस्ट्री कैसे करना है, ज्योग्राफी कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा कोचिंग अटेंड करना है, देन कंसल्ट, राइट। ये किसी के पास लेके मत जाइए कि भैया आईआईटी कैसे क्रैक करना है, भैया कॉमर्स सीए कैसे निकालना है।
दिस शोज सीरियसली शो कि आपका बहुत खराब प्रिपरेशन चल रहा है एंड यू आर वेरी नॉन सीरियस अबाउट दैट थिंग, वेरी नॉन सीरियस कि भैया सीए की तैयारी कैसे करें। ये क्वेश्चन नहीं है, वो बंदा कैसे आपको बता सकता है 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे के समय कि पूरे सीए की तैयारी कैसे करें। इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डू, राइट। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन जाइए, गूगल करिए, ढूंढिए, यूट्यूब में मिल जाएगा नाम का चीज, तैयारी चालू करिए। तब परेशानी आ रही कि क्या सेलेक्ट करना है। जहाँ डिसीजन मेकिंग में आपको कंफ्यूजन आ रहा है वहाँ कंसल्ट योर सीनियर्स एट द वेरी फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे भैया दिक्कत आ रहा है। तो हमें भी पता चलता है कि यस दीज स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी सीरियस इन देयर वर्क एंड देयर स्टडीज। कि आके पूछा है कि अच्छा लगता है कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है आपका कोई जूनियर आके पूछे भैया ये कैसे। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे टीचर्स एक्सपेक्ट नहीं करते स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे, कभी भी नहीं। आपके फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, अर्जुन सर, सरस्वती मैम, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनके दिमाग में, उनके क्वालिफिकेशन से जो आप कभी पहुंचते भी नहीं हो। लेकिन जो बंदा वो क्वेश्चन ढूंढ के निकाल लेता है, उसका दिमाग उनकी उसकी क्यूरियोसिटी वहां पे ले जाती है, वो पूछ लेता है, तो टीचर को खुशी मिलती है कि चलो एक बंदा यहाँ तक पहुंचा है, इज डूइंग रियली 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 गुड। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, डार्क एरियाज आपके लिए जो आपके टीचर से ध्यान करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ योर बुक, राइट। गो बियॉन्ड इट, वर्क बियॉन्ड इट एंड गेट सम रियल नॉलेज जो आगे जाके हेल्प करे। फर्स्ट सेकंड तो चलता रहेगा, इट्स गुड पैरामीटर, लाइफ में कुछ करने के लिए करना पड़ेगा। दिस इज इट। कोई क्वेश्चंस? थोड़ा फ्री लग रहा है, पूछ सकते हो। अभी भी डर है टीचर्स को बता दें। हाँ यार वो आप स्कूल में हैं, राइट, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सीबीएसई एग्जाम पे फोकस नहीं करना। और सीबीएसई एग्जाम एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है, पैरामीटर है कि यू आर स्टडीइंग गुड। और दोनों चीज़ एक्सक्लूसिव नहीं है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो सीबीएसई एग्जाम से एक्सक्लूसिव नहीं है। सीबीएसई के एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस कॉम्पोनेंट करता है, राइट। तो अगर सीबीएसई एग्जाम का आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 90% प्लस लाने के लिए, और नॉट वाइंग टू गेट 98% इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशंस, देन इट विल फॉर्म 50% ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सारे एनसीईआरटीज का कम कर। तो अगर आप सीबीएसई में बहुत अच्छे हो तो ये 50% वर्क इज डन, उसके बाद 50% आपको करना है। तो अब टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। जब स्कूल ब्रेक है, राइट, अभी यहाँ पे आपका ब्रेक है, मैथ्स आप 7-8 चैप्टर ज़्यादा कंप्लीट कर रहे हो, सब में थोड़ा आगे बढ़ गए। तो जब स्कूल में आ रहा था तो आपका रिवीजन चल रहा होगा, आप शाम में फ्री हो गए अपने ट्यूशंस वगैरह से, उस समय जेईई की तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव। यू नीड टू मेक योर ओन टाइम, राइट। रात में, दिन में, सुबह जल्दी उठ के कहीं पे भी दोस्तों मस्ती करने का भी पार्टी स्किप कर दिया है ना, टाइम निकाल लो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और क्वेश्चंस वगैरह ले लो, पीवाईक्यू निकाल लो। तो इंटरनेट है यार, मेरे टाइम पे नहीं, मेरे टाइम पे बस रिजल्ट देखने के लिए इंटरनेट यूज होता है। सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए हमारे टाइम पे इंटरनेट यूज होता है। आपके यहाँ तो दुनिया है, जिस कोचिंग का चाहोगे उस कोचिंग का एमसीक्यू निकाल के अभी दे दोगे, अभी अटेम्प्ट कर दोगे, 2 मिनट लगेगा, सबके हाथ में मोबाइल है, तुरंत निकाल के अटेम्प्ट कर दोगे। आप लोग को प्रिंटेड क्वेश्चंस दिया जाता है, तो ये कर रहे हैं। हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल था, हमें कोटा को कुरियर करना पड़ता था, ड्राफ्ट बना के 2500 रुपए कि भैया क्वेश्चन भेज दो। 6 दिन में पहुंचता था, 7 दिन के बाद और 4 दिन का रिप्लाई आता था एक पैकेट के साथ, और फिर 1 महीना के बाद कुरियर आता था अगले क्वेश्चन पेपर का, राइट। तो ये आपके साथ नहीं है, आपके पास इंस्टेंट अवेलेबल है। अभी 2 मिनट में मोबाइल से यूएसबी कनेक्ट करोगे, प्रिंट करा के क्वेश्चन सॉल्व। डू इट है ना। यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा टाइम निकालो, इक्वल फोकस रहे। सीबीएसई पे अभी थोड़ा ज़्यादा, जेईई पे, राइट। और एनीवन एल्स मेडिकल जेईई कॉमर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, वो आपको जज नहीं कर रहा कि आपके क्लियर ग्रुप में हाय यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू फ्रेमिंग इट अप? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स कि मैं टीचर्स को भेज दूं काम यहाँ से? डर रहे हो सब? आगे देखिए टीचर्स। चलो I'll take around 10 minutes. Okay.